Hariom, Namaste, very good morning everyone. Welcome again to my YouTube channel GK Law Classes. So we have previously started with the Mediation Act 2023 whose part 1 is already available on our channel. So as you all know, this Mediation Act is going to come into your upcoming exam of IFSC AM legal exam, and for max we can expect 3 to 4 questions from this particular act, so it is very important to maintain those numbers. So today is the part 2 of the Mediation Act of 2023. In part 1 we have already covered till section number 4, so today we are going to begin with section number 5. Students who have joined us today, please do see that video of part 1 for Mediation Act also, and we are only going to cover the important, very important sections of the Mediation Act only. So in case if you have any doubt or any query regarding this act, or you want any other act to be covered on our channel regarding your upcoming IFSC exam, then do let us know in the comment sections. So let's start with part 2 of the Mediation Act 2023. First section is pre-litigation mediation. So आपको जैसे कि पता है कि सेक्शन नंबर 4 जो था, it was all about the mediation agreement. That means that for initiation of any kind of mediation between the parties at dispute, it is essential that they must have an agreement for mediation in writing, or a mediation clause to be referred in case of dispute arose between them into their main agreement of the main issues, right? So section number 5 talk about the pre-litigation mediation. From the name itself, it means that before filing any civil or commercial suit, they have to consider a mediation. So this is basically a right given to the parties that before initiating any kind of suit into your civil court or for any commercial dispute, the parties are basically advised. Here they are advised under section 5 to first go for mediation to solve their issues amicably between them by availing the services of the third party, right? So this provision is also applicable in case of tribunals. That means that instead if you are going for a civil suit, commercial dispute into a court, or you are going for tribunal for any kind of compensation or settling your dispute, still in both of the cases before approaching the court or tribunal, you can initiate the process of pre-litigation mediation. So here basically parties may seek assistance of a mediator who is impaneled at the civil court center or by the civil legal service authority or by mediation service provider. So basically this act also provides a section of a mediation service provider, and in case if they assign a mediator to you under this particular act, that will be known as institutional mediation. So in case now if we go for a motor vehicle act, now student, this happens that you have a case lying in a motor vehicle tribunal, there is a case of a compensation. In that case also, before heading towards a tribunal and even after heading to a tribunal, they may ask you to settle your compensation claim in a pre-litigation मीडिएशन. सो छोटी छोटी और मोटी मोटी बात इसमें यही है कि प्री लिटिगेशन मीडिएशन का मतलब ये होता है कि कोर्ट या फिर ट्रिब्यूनल पे जाने से पहले पार्टीज को यही एडवाइस दी जाती है कि वो जो है आउट ऑफ कोर्ट एक तरीके की थर्ड पार्टी को अप्रोच करके सेटलमेंट कर ले. इसमें थर्ड पार्टी आपका मीडिएटर होता है जो आप दोनों पक्षों की बातें सुनता है और फिर एक अच्छा एमिकेबल सोल्यूशन उस प्रॉब्लम का निकाल के देता है. आगे है सेक्शन नंबर 6 दैट टॉक्स अबाउट डिस्प्यूट नॉट फिट फॉर मीडिएशन. तो सेक्शन नंबर 2 के अंदर प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये पर्टिकुलर एक्ट कौन से सूट्स के ऊपर अप्लाई होता है, किन किन पार्टीज के बीच में जो डिस्प्यूट अरोज होता है विच इज अ सिविल और कमर्शियल डिस्प्यूट, तो ये मीडिएशन एक्ट हमारा लगता है. तो यहाँ पे 6 में बात की है किस पे नहीं लगता है, तो कहते हैं वो सारे के सारे डिस्प्यूट जो कि इस एक्ट मीडिएशन एक्ट 2023 के शेड्यूल 1 में मेंशन किए गए हैं, उन पे ये एक्ट लागू नहीं होगा. So the dispute mentioned in the first schedule of this 2023 Act, dispute mediation will not apply on those particular dispute. For example, matrimonial dispute. So matrimonial dispute आप mediation के द्वारा सुलझा नहीं सकते, but आप लोक अदालत definitely उनको लेके जा सकते हो. Next section आता है power of the court or tribunal to refer parties to mediation. Now instant आप खुद अपने आप मीडिएशन के लिए नहीं गए, आपने सीधा जो है कोर्ट और ट्रिब्यूनल को अपने डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आपने उनके पास अपना केस लगा दिया है. तो
कोर्ट जो है, ट्रिब्यूनल जो है, अगर उनके पास कोई केस आता है एंड दे फाउंड आउट देयर आर चांसेस फॉर मीडिएशन बिटवीन दी पार्टीज, सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर लिटिगेशन, कोर्ट या ट्रिब्यूनल उनको रेफर कर देगा कि भाई आप सूट ना इनिशिएट कीजिए, या अगर आपने कर भी दिया तो आप वेट कीजिए, अगले प्रोसेस पे, अगले स्टेप ऑफ के ऊपर मत जाइए, सबसे पहले मीडिएशन की ऑप्शन जो है उसको यूटिलाइज कीजिए। जब वो यूटिलाइज हो जाएगी, अगर आपकी सेटलमेंट नहीं बनेगी, तब हम आगे चल के जो है आपके इश्यूज फ्रेम करके आपके डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट कर देंगे। राइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको तीनों सेक्शन में समझ आ रहे होंगे। हम सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शंस ही यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर आप देखिए नंबर्स मैंने सर्कल किए हैं, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14, ये सारे इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। आने वाले दिनों के अंदर मैं एक शॉर्ट भी लेके आऊँगी जिसमें इंपॉर्टेंट सेक्शन नंबर्स जो है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको कौन से सेक्शंस जो है उन पे खासा फोकस रखना है इन रिगार्ड टू योर मीडिएशन एक्ट ऑफ 2023। राइट स्टूडेंट्स, आगे चलेंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर्स, सेक्शन नंबर 8। सो नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ मीडिएटर्स। अब ये जो मीडिएशन एक्ट है ना, इसके अंदर भी बहुत कुछ आर्बिट्रेशन जैसा भी मिला हुआ है। तो जैसे अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर्स करते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस ये है कि इवन नंबर हम यूजुअली नहीं अपॉइंट करते क्योंकि उससे डेडलॉक हो जाता है बिटवीन द टू मीडिएटर्स। तो कहा जाता है 1, 3, 5 ऐसे आप मीडिएटर्स जो है अपॉइंट कर लीजिए। किसी भी नेशनैलिटी का मीडिएटर हो सकता है, कोई भी उसकी क्वालिफिकेशन है। पार्टीज आर फ्री टू अपॉइंट इवन वो मीडिएटर सर्विस प्रोवाइडर। इस एक्ट के तहत जो सर्विस प्रोवाइडर बनाए गए हैं उनके थ्रू इम्पैनल्ड मीडिएटर्स जो है उनको भी अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन नंबर 11, टर्मिनेशन ऑफ मैंडेट ऑफ मीडिएटर। मैंडेट का मतलब यहाँ पे ये है कि अगर उसकी जो अपॉइंटमेंट है आपको नहीं पसंद आई तो आप उसकी सर्विसेज को टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। तो वो मीडिएशन सर्विस प्रोवाइडर जो है उसकी मैंडेट को जो है टर्मिनेट, उसकी अपॉइंटमेंट को टर्मिनेट कर देता है। अगला है सेक्शन नंबर 12, रिप्लेसमेंट ऑफ मीडिएटर्स। तो जब आपकी टर्मिनेशन हो गई या आपको लगता है मीडिएटर बायस है, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है वहाँ पे, ठीक है, तो ये किसी पार्टी से मिला हो सकता है ऑपोजिशन पार्टीज के थ्रू, तो इन दैट केस ईदर ऑन वन पार्टी ऑन इट्स ओन मोशन या बोथ द पार्टीज जो है मीडिएटर को रिप्लेस कर सकती हैं। एंड 7 दिन के अंदर अंदर जो है आफ्टर हिज रिप्लेसमेंट आपको नया मीडिएटर जो है वो अपॉइंट करना होता है। आगे चलेंगे, सेक्शन नंबर 14 की बात करने स्टार्ट करेंगे जिसमें बात की जाती है कमेंसमेंट ऑफ मीडिएशन। राइट स्टूडेंट्स, मैं ऊपर वाला रब कर दूंगी। कमेंसमेंट कब स्टार्ट होती है? जैसे आर्बिट्रेशन में जब ऑपोजिट पार्टी को इंस्टीट्यूशन फॉर आर्बिट्रेशन का नोटिस सर्व किया जाता है कि आप इन्वोक करवाने लगे हैं उसको और आप जो है उस प्रोसीडिंग के लिए आर्बिट्रेटर के सामने आ जाइए। उसी तरीके से मीडिएशन भी कैसे स्टार्ट होती है? जब आप सामने वाली पार्टी को एक नोटिस सेंड कर देते हैं फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ मीडिएशन by you. So commencement of mediation will start when the other party receive a notice for institution of the mediation by the first party, या फिर जब मीडिएटर को अपॉइंट किया जाता है तब भी मीडिएशन स्टार्ट कर दी जाती है। आगे चलेंगे अगले इंपॉर्टेंट सेक्शन की तरफ, कंडक्ट ऑफ मीडिएशन। 15 नंबर है ये सेक्शन। स्टूडेंट, आई होप आपको वीडियो जो है वो समझ में आ रही है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, मैं उसे सॉर्ट आउट डेफिनेटली करूँ। सबसे पहले तो बात है कि कंडक्ट कैसे वो चीज कंडक्ट मीडिएशन कराई जाएगी। तो क्या फॉलो होगा? नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स, राइट। फेयरनेस की थ्योरी के ऊपर रन किया जाएगा। इसकी कोई भी लैंग्वेज चल सकती है, एनी लैंग्वेज, इन एनी लैंग्वेज, यानी पार्टीज आर फ्री टू डिसाइड द लैंग्वेज एंड द वे दे वांट द मीडिएशन टू बी डन, इन पर्सन, कागज के थ्रू, किस तरीके से, या ओरली, वॉट एवर फॉर्मेट, कोई भी लैंग्वेज चल सकती है जिसमें पार्टीज कंफर्टेबल है एंड सामने वाला भी कंफर्टेबल रहेगा। नॉट बाउंड बाय, नॉट बाउंड, मीडिएशन एंड मीडिएटर्स वुड नॉट बी बाउंड बाय code of, not bound by code of civil procedure and evidence act in India 2024 onwards जो है आपके पास यहाँ पे BSA आ जाएगा। तो BSA के द्वारा उस पर कोई भी बाध्यता नहीं होगी, इंडियन एविडेंस एक्ट की कोई भी उस पर बाध्यता नहीं होगी।
अब चलते हैं एक और इम्पोर्टेंट सेक्शन की तरफ। अब 2-3 और आपके इम्पोर्टेंट सेक्शंस आ गए, जिसके बाद बस आपको कुछ नाम ही याद रखने हैं। टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ मीडिएशन, कितनी देर के अंदर मीडिएशन का प्रोसेस जो है उसको वाइंड अप करना है मीडिएटर के द्वारा, वो लटका के नहीं रख सकता है। सो टाइम लिमिट फॉर completion of what? Mediation, right students? सेक्शन है 18 नंबर सेक्शन। क्या टाइम लिमिट होगी? 120 डेज, 120 दिन फ्रॉम फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ पार्टी। ठीक है, जिसने इनिशिएट कराया है, नोटिस दिया है, पहली अपीयरेंस जब लग जाएगी from 120 days of first appearance time limit है। extension in case certain kind of delay happens and on sufficient cause जो है उस डिले को कंट्रोल कितने दिन किया जाएगा? 60 days। so maximum कितने हो गए आपके पास? with extension 180 दिन, tentatively 6 महीने, 6 months, right? so 120 फर्स्ट टाइम फ्रेम रहेगा, एक्सटेंशन आपको 60 डेज की मिलेगी, मैक्स कितना हो गया? 180 डेज अप्रोक्सीमेटली आपके पास 6 महीने के अंदर अंदर आपको ये सब करना होगा। नाउ स्टूडेंट्स व्हाट हैपन, अब इन लोगों की आपस में बातचीत शुरू होगी। मीडिएटर ने समाधान निकलवा दिया है, तो अब समाधान निकाल के पार्टीज अपने अपने घर को नहीं जाएगी। उसके बाद क्या होगा? सेटलमेंट एग्रीमेंट बनवाया जाएगा। सेटलमेंट अग्रीमेंट, ये सारे ही सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। मैं सेक्शन के नंबर्स की लिस्ट शेयर कर लूंगी आपके साथ शॉर्ट्स में, ठीक है? 19 नंबर। सो रिजल्ट ऑफ डिस्प्यूट बी अनाउंस्ड इन राइटिंग, पॉपुलरली नोन एज द सेटलमेंट agreement, right? It has to be signed by both parties plus authentication of mediator। उसके भी साइन सील लगेंगे, पार्टीज के भी दस्तखत होंगे। इन केस कोर्ट ने रेफर करा हुआ है, कोर्ट रेफर्ड ये लोग आए हैं, अपने आप इन्होंने प्री लिटिगेशन या अदरवाइज इनका कोई एग्रीमेंट क्लॉज नहीं था। इन दैट केस अ कॉपी signed by all of them, signed by them will be sent to court first। तो सबसे पहले जब कॉपी सिग्नेचर्स के बाद है, पार्टीज में तो डिस्ट्रीब्यूट होंगी, पर अगर कोर्ट या ट्रिब्यूनल की रेफरेंस पे आए हैं तो कोर्ट के पास सबसे पहले कॉपी जाएगी, टेलिंग देम कि सेटलमेंट इनकी हो गई। अगर इनका कोई केस कुछ चल रहा है तो उसको वहां पे ही बाइंड अप कर दिया जाए। कोर्ट आफ्टरवर्ड साइन सील करके पार्टी से पूछ के उनकी यस सुन के फिर उस एग्रीमेंट को फाइनलाइज कर देगी, जिसके बाद प्रोसेस स्टार्ट होता है रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट। राइट स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेटलमेंट अग्रीमेंट, राइट। 20 नंबर सेक्शन, 20 नंबर है। वैसे तो कंपल्सरी नहीं है, अगर पार्टीज अपने आप ही म्यूचुअली डिसीजन के साथ गए थे मीडिएशन के लिए कोई कंपल्शन नहीं है, बट अदरवाइज अगर उन्होंने कोर्ट की रेफरेंस पे किया है, कोर्ट रेफरेंस, फिर 180 दिन ऑफ रिसीविंग द कॉपी, एक 180 डेज ऑफ रिसीविंग द कॉपीज, उनको रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी हो जाएगी। और रजिस्ट्रेशन होने पे उन्हें एक यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया जाएगा, अलॉट किया जाएगा उन लोगों को, ताकि कल को कुछ भी हो तो वहां से डेटा निकाल लिया जाए कि भी इनकी तो ऑलरेडी हुई थी, तो ये लोग जो है इस चीज पे नहीं जा सकते। नेक्स्ट सेक्शन है कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब प्रोसीडिंग की कोई भी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होगी। हो सकता है सर्विस प्रोवाइडर्स ने जो मीडिएटर दिए हो उनके पास कॉपी हो, बट अदरवाइज बाहर कुछ लीक नहीं होगा।
पार्टीज की कोई भी इंफॉर्मेशन जो उन्होंने मीडिएटर को ट्रस्ट रख के बताया है वो ना मीडिएटर बात किसी को बताएगा, ना ही कोई भी स्टाफ का मेंबर या और कोई भी वहां पे बताएगा जो वहां पे प्रेजेंट है, राइट। अब बस एक दो इंपॉर्टेंट आपके पास चीजें रही हैं। टर्मिनेशन ऑफ मीडिएशन, अगेन इंपॉर्टेंट सेक्शन। टर्मिनेशन ऑफ मीडिएशन सेक्शन नंबर 24 कब समाप्त हो जाते हैं? कब समाप्त होते हैं? साइनिंग ऑफ अग्रीमेंट नंबर 1, डेक्लरेशन बाय मीडिएटर, वो खुद कह रहे जी भी मैं इसकी समाप्ति की घोषणा करती हूँ। ऑप्ट आउट ऑफ पार्टीज अगर वो मीडिएशन प्रोसेस में से ऑप्ट आउट कर देता है, चाहे एक या दोनों, तब भी बंद हो जाएंगे। या फिर एक्सपायरी ऑफ टाइम लिमिट, 180 दिन से ज्यादा बीत चुके हैं अंडर सेक्शन 18, देन ऑल्सो मीडिएशन वहां पे समाप्त हो जाएगी। लास्ट है कॉस्ट ऑफ मीडिएशन, सेक्शन नंबर है 25। स्टूडेंट्स ये 65 सेक्शन है, बट आपने जो है सिर्फ इम्पोर्टेंट करने हैं। एंड द कॉस्ट फॉर मीडिएशन इज टू बी बोर्न बाय पार्टीज देमसेल्फ, वही खर्चा उठाएंगे। मीडिएटर अपॉइंटमेंट का खर्चा भी पार्टीज ही उठाएंगी इस चीज के अंदर, उन्होंने इंडिपेंडेंट लिया तो अपना अपना लेंगे। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द मीडिएशन एक्ट 2023। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आई है तो लाइक शेयर कीजिए, एंड जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। विल सी यू नेक्स्ट विद अनदर वीडियो।